हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 4 सेमीकंडक्टर का। तो आज का टॉपिक है सोलर सेल और इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डायग्राम बना लो पहले इसका। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, साथ में तुम लोग भी बनाओ। ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं रियर कॉन्टैक्ट। रियर कॉन्टैक्ट, रियर कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस योर पी टाइप मटेरियल या पी साइड, राइट। हियर इज emitter n type, that is called emitter, that is made up of n type. This is your front contact, front right. There is an anti-reflecting coating. This is your anti-reflecting coating या contact, right. So sunlight fall on it. ठीक है, it is connected with the load resistor minus, this is your plus load resistor RL, right. So see the first point, solar energy can be used in many ways, right. So we know the uses of solar energy. Yes. So it pollution free and available, free of cost, right. So it doesn't pollute anything and it is free of cost. Yes. So two major types of device converting solar energy into which photothermal device which converts solar energy to heat energy. So first conversion method is Solar to heat energy. photothermal device. So photothermal Its use. device which converts light into heat. So this is the system which converts solar energy into heat energy. Right. Now see, these are the most commonly used for providing hot water, right. Yes. So this is used in flats to provide the hot water during winter season. Geyser. So like it works like a geyser. So it mostly used for providing hot water. Okay, sir. For providing hot water, H2O. Yes. Now see, the next one is photovoltaic device. So your next device is photovoltaic devices which convert solar energy into electrical energy. These convert solar energy into electrical energy. So use of the photovoltaic cell is to convert into electrical energy. It is also known as photovoltaic cell, right. Now see, next point, light incident or solar cell produce both current and voltage to generate electric power. So it produces both electric and voltaic. So it light incident on solar cell produces both Okay. current and voltage to generate electricity, to generate electric power. So next is solar cell thus work as a source of DC power. So it can be used as a DC power. So it is A DC source. used as a DC source, right. DC means whose value is constant with the time. Solar cell can supply power for electric equipment at the remote place on the earth and abroad, a satellite or a space station. ठीक है, so it can provide electric for a place which is at a large distance. So no need to write this one. So you have seen the diagram for photovoltaic cell or solar cell. So it consists of PN junctions. So see the construction part of solar cell.
Now first is construction of solar cell. So it consists of PN junction. First, it consists of PN junction. Next one is N type of junction faces the solar radiation. So you can see this here N type upper part. So it faces to the solar radiation. Next point is this is T. The N side of junction faces solar radiation. ठीक है. P type is relatively thick and it is at the back side of the solar cell. The P side is relatively thick and is at back of solar cell. ठीक है. Right up to this point. इधर P and N side are connected with conducting material. तो देखो ये दोनों को आपस में जो कनेक्ट किया है उसको कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो है तो लिख लो, शांत बैठो. बोथ लिखो P साइड दोनों करो. बोथ P साइड एंड N साइड आर coated with conducting material. ठीक है. N side is coated with anti reflection coating. तो N साइड में एंटी कोटिंग होता है. ठीक है. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है ना. तो लिख लो the N side is coated with anti reflection coating which allows visible light to pass through it. The main function of this coating is to reflect the IR ray. IR क्या है? इंफ्रारेड. ठीक है. तो लिख लो एंटी रिफ्लेक्शन का मेन फंक्शन क्या है? The main function of this coating is to reflect. साथ में लिखो, is to reflect the IR heat. ठीक है. And protect the solar cell from heat. ठीक है. मतलब इंफ्रारेड को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो. दिस नेसेसरी बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर. ठीक है. तो देखो ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम से. तो उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है. तो लिख लो दिस इज बिकॉज, लिख लो दिस इज नेसेसरी. दिस इज नेसेसरी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक properties of semiconductor are sensitive to fluctuation in temperature. ठीक है. तो इससे बचने के लिए करते हैं हम लोग. ठीक है. दिस कोटिंग वर्क्स एज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द सोलर सेल. इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है. ये पार्ट दिख रहा है ना तुझे? एंटी रिफ्लेक्शन का काम करता है ये वाला. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट देखो, द कॉन्टैक्ट ऑफ इन साइड इज कॉल्ड फ्रंट साइड एंड दैट ऑफ पी इज कॉल्ड बैक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैं, देखो इसको रेयर कॉन्टैक्ट बोलते हैं और इन टाइप वाले को फ्रंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऐड कर लो। द कॉन्टैक्ट ऑन इन साइड इज कॉल्ड फ्रंट कॉन्टैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज and that of the back side and that of P side is called back side contact। ठीक है, चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन साइड ऑफ सोलर सेल इज थिन सो दैट लाइट इंसिडेंट ऑन इच रीचेस द डिप्लेशन रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। ठीक है, तो डिप्लेशन में तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया था क्या, ऐसा मटेरियल होता है पी और ये होता है, ये रीजन को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो पी में मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा? होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से साइड होगा ना, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इधर होल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। चलो, तो मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग अ सोलर सेल शुड फुलफिल टू important requirement. First, it must be photosensitive material which absorb light and raises electron to the higher energy. तो देखो, हेलो, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग अ सोलर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज करता हूँ वो फोटोसेंसिटिव होना चाहिए। तो मटेरियल लिख लो, यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग अ सोलर सेल, fabricating a solar cell should fulfill two important requirement. ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसका? इट मस्ट बी फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच एब्जॉर्ब्स लाइट। ठीक है, तो इसका काम क्या है? विच एब्जॉर्ब लाइट एंड raises electrons to higher energy state। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट काम क्या है मटेरियल का? हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स thus generated should be taken from the solar cell into external circuit। सेकेंड काम देख लो इसका। सेकेंड, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स 10 generated should be taken from solar cell into external circuit। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देन dissipate their energy while passing through external circuit return to the solar cell। ठीक है, तो ये सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो एंटी कोटिंग से एन टाइप से पी टाइप, इसको कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो प्लस माइनस की तरफ कनेक्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पी वाला पी के साथ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ ना, एन वाला एन के साथ कनेक्ट है। तो ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ वर्किंग ऑफ सोलर सेल। इसका वर्किंग बहुत इजी पार्ट है। अभी पढ़ेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ सोलर सेल। ठीक है, तो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट है अपना वर्किंग
ऑफ सोलर सेल। तो फर्स्ट देखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सोलर सेल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा अगर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन। तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, ठीक है, इन डिप्लेशन रीजन, इन डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ऑफ पीएन जंक्शन, ऑफ पीएन जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर कॉल्ड फोटो जनरेटेड कैरियर। सो दीज आर कॉल्ड फोटो जनरेटेड कैरियर। दीज आर फोटो जनरेटेड कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रॉन एनोड पे कनेक्ट होता है और होल्स कैथोड पे। तो लिख लो, एनोड एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड collected at cathode and anode respectively. Next point देखो, next क्या है? Carriers are accumulated and generate a voltage across the solar cell. The carriers are accumulated and generate a voltage across solar cell. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, पावर दस प्रोड्यूस इज डेसिपेटेड मतलब यूटिलाइज होता है, उसको बोलते हैं पावर दस प्रोड्यूस्ड इज डेसिपेटेड, ठीक है, इन लोड रजिस्टर, इन अ लोड रजिस्टर या रेजिस्टेंस, और इन सर्किट, और इन द सर्किट connected across the solar cell, connected across solar cell। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर बताओ। नेक्स्ट पार्ट देखो वर्किंग का। तो ये समझ गया तुम लोग, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इनके बीच में जो ये रीजन जो है ना, उसको डिप्रेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, दीज आर फोटो जनरेटेड कैरियर। तो फोटो जनरेटेड कैरियर मतलब इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है ना, तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो इसको कैथोड और एनोड बोलते हैं। फिर देखो, कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड जनरेटेड वोल्टेज अक्रॉस सोलर सेल। तो ये मतलब ये वोल्टेज क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखो, पावर दस प्रोड्यूस इज डिसिपेटेड इन लोड रजिस्टर। ठीक है, इसके ऊपर से तुम इसका यूज कर सकते हो ना, अगर एनर्जी स्टोर कर लिया तो हाँ, मतलब कोई भी कंपोनेंट्स यूज कर लो, फैन, लाइट, तो उसको लोड रजिस्टर बोलता है, नाम दिया। तो क्या पीएन का कैपेसिटर जैसा काम करता है क्या? एसी नहीं कर सकता वो, तो एसी पर इस पे चलता है ना, अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफार्मर, हाँ, कनेक्टेड अक्रॉस सोलर सेल। तो डायरेक्ट सोलर कनेक्शन करते हैं, गांव में जैसे देखो लेते हैं, तो बल्ब का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ना सोलर सेल से, बैटरी स्टोर करते हैं। हाँ, लाइट आती है तो सोलर सेल यूज करते हैं, हमारे गांव में यूज करते हैं, सबके गांव में। ठीक है, तेरे गांव में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्किंग देखो, करंट प्रोड्यूस इन सोलर सेल इज कॉल्ड लाइट जनरेटेड करंट। तो ये करंट का एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो लिख लो, करंट प्रोड्यूस्ड
in solar cell is called light generated current. Light generated current. Generated current. ठीक है, और फोटो जनरेटेड करंट और फोटो जनरेटेड मतलब mean square velocity. हाँ उसका ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज Then you are correct. Please move ahead. देयर इज ए टू स्टेप प्रोसेस. तो देखो यहाँ पे दो स्टेप्स में होता है, शांति में रखो. फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू जनरेट इलेक्ट्रॉन और पेयर. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रुक जाओ. फर्स्ट स्टेप इज टू द absorption of light. Absorption Of light. of light. Absorption of light to generate electron hole pair. To generate electron hole pair. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्या है देखो. Electron hole pair will be generated in the solar cell provided that incident photon has energy greater than that of band gap. ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं ध्यान बताता हूँ. मिटा दो. ठीक है. नेक्स्ट देखो, वर्किंग ऑफ सोलर सेल में. नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड इन सोलर सेल प्रोवाइडेड दैट इंसिडेंट फोटोन हैज ग्रेटर एनर्जी. नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन होल जो है ना पेयर विल बी जनरेटेड जो घर है उनका in solar cell provided that incident photon has greater energy greater that of the band gap than that of band gap. ठीक है. नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन होल्स thus produce recombination and will be lost. ठीक है. फिर क्या हो जाता है, लॉस्ट कर जाता है. इलेक्ट्रॉन नॉर्मली In the bag, bro. इलेक्ट्रॉन You want? and hole Thank you. thus produced recombine and will be lost. There will be no generation of current and power. ठीक है. जब लॉस्ट कर जाएगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो लिख लो, there will be no generation of current or power. नेक्स्ट देखो, photo generated electrons p type and photo generated holes in the n type are separated prevent from recombination. ठीक है. Okay. तो ये डायग्राम तुम लोग बना लो. ठीक है. इसी को खराश हो गई. Nikhil, are you done? No, bro. What you doing then? ये ले ले. चलो ये डायग्राम बनाओ फटाफट साथ में. Hey son, give me my phone back. ये ले ले. ठीक है. ये ए है, ये है तुम्हारा फ्रंट कॉन्टैक्ट. ठीक है. ये है तुम्हारा रियल कॉन्टैक्ट. ठीक है. इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं.
अब तो ये लिखो है। कनेक्ट कर दे लोड से। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कैरियर इन सोलर सेल। ये टास्क इरेजर है क्या? करो देन व्हाट यू वर्ड इज otherwise in the phone इन सोलर सेल। तो साथ में आने को देखो वर्किंग में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शांत बैठो। देखो दिस सेपरेशन, create me दिस सेपरेशन ऑफ कैरियर ये चश्मे का वही निकल गया। is possible, क्या शांति नारा को is possible क्या निकल गया due to मेरे को लगा intrinsic electric field, electric ऐसा लगने दे field of depletion region, of depletion region। ठीक है, तो सप्रेशन देख सकते हो, ये डिप्लेशन रीजन दिख रहा है तुम्हें? यस सर ठीक है, इसको इंट्रिंसिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस डायग्राम, when light generated electrons in the p type region reaches the pn junction, this sweep across the junction electric field at the junction। ठीक है, नेक्स्ट देखो, it reaches the n type where it is has a majority carrier। तो n टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हां तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है p टाइप में। ठीक है, n टाइप में, n टाइप में, ये तुम्हारा n टाइप रीजन है ना। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली लाइट जनरेटेड बाय होल्स रीचेस द p टाइप रीजन बिकम्स अ मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो p टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल है, मेजॉरिटी कैरियर दैट इज होल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर thus accumulated in p and n रीजन। तो सिंपल है, ये p है तो पॉजिटिव की तरफ ही कनेक्ट होगा, राइट? p मतलब पॉजिटिव और n मतलब नेगेटिव। When solar cell is connected to an external circuit, light generated carrier flow through the external circuit। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लो, IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का। y एक्सिस पे ये वोल्ट करंट लिया हूँ, y एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया हूँ। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करता है। ये मान लीजिए 4 है, 4 3 2 1 0। ठीक है, ये है तुम्हारा पीवी करंट, ये V पे 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 और ये है तुम्हारा 17। ये 20 वोल्ट मैक्सिमम जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। ये अगर 20 वोल्टेज ऑब्टेन होगा तो उस टाइम काम नहीं करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छा और ये अगर 5 एम्पियर तुम्हें मिला तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट बंद हो गया ना काम। हाँ, आई मैक्स फ्लो होगा। ठीक है, तो आपस यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, इसको ISC बोलते हैं, शॉर्ट करंट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यस तो ये हो गया तेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये वाला, इसके पहले वाला ड्रॉ किया हाँ। ये तीनों डायग्राम लिखना और इसके बीच में कुछ भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन मेन डायग्राम बनाना जरूरी है। कितना वर्ड? 4। हाँ, 4 नेक्स्ट देखो, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल when illuminated drawn in the fourth quadrant show a solar cell supplied to the load, the power dissipated to load is 0 when load is short circuit। तो सिंपल है, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा ना, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख ले, द पावर dissipated to load is 0 when load is short circuit, when load is short circuit, the intersection of the curve I and V that show the ISC। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट।
द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वी एंड, और यहाँ पे टच करेगा एक्स एक्सिस पे तो ये ओपन सर्किट है, और ये मैक्सिमम करंट रीच करेगा तो शॉर्ट सर्किट है। तो ये 2 पॉइंट याद रखो। अगेन पावर डिसिपेटेड टू लोड इज 0 व्हेन लोड इज ओपन, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ पॉइंट वेयर पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा ना, तो ये इसका वैल्यू लिख लो, PL इक्वल टू क्या मिलेगा, VOL इनटू ISC, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, पावर मैक्सिमम। चलो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग मटेरियल। तो क्राइटेरिया क्या है इसका, क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया ऑफ या फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल Suppose P is equal to the pressure into the gas. फॉर सोलर सेल, फॉर सोलर सेल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इट्स बैंड गैप बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स बैंड गैप 6 into 10 raised to minus 19 should be between 1 to 1.8 between 1 to 1.8 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए इसका बैंड गैप, किसका, मटेरियल बैंड के मटेरियल, ठीक है। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे हो गया। इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इट शुड ऑप्टिकल have ऑप्टिकल high adoption optical absorption, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन मतलब कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड देखो, थर्ड क्या, इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पढ़ाया था ना तुम लोगों को, K इक्वल टू क्या होता है 1/ρ होता है ना, रो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है ना कंडक्टिविटी। तो मटेरियल इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट इज material should be easily available. So next point is material should be easily available. So write this criteria for selecting or for making solar cell. yes so I'll copy it down. Most material used for fabrication of solar cell have band gap of 1.5। जैसे देखो सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है गैलियम एस, इसका है तुम्हारा 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो उसके रेंज में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो कैडमियम और टेलेरियम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है CuInAc, इसका है 1.04 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये है तुम्हारा मटेरियल जो यूज होता है बनाने के लिए सोलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोलर सेल यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड स्पेस एप्लीकेशन, मोस्टली सिलिकॉन मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल, ठीक है। तो इसमें मोस्ट प्रेफरेबल ये है सिलिकॉन का। सोलर सेल आर नॉन पोल्यूटिंग, दे प्रोड्यूस लेस मेंटेनेंस, लार्ज लाइफ, ठीक है। तो इसको लो मेंटेनेंस लगता है, इसका लार्जर लाइफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दे हैव अ हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करने में ज्यादा लगता है लेकिन इसका लो इफिशियंसी भी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ड्रॉबैक, हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है, एंड लो एफिशिएंसी। तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक हो गया इसका। चलो अभी नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ सोलर सेल। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सोलर सेल, ठीक है। सोलर यूज फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम सो दैट बैटरी कैन बी सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू चार्ज द बैटरी, टू चार्ज द बैटरी,
नेक्स्ट देखो, दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस, ठीक है, रिमोट मतलब दूर डिस्टेंस पे, हाई जो दूर दूर गांव दराज में रहता है उसके लिए, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज। थर्ड देखो, नेक्स्ट है क्या, फॉर पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक कैलकुलेटर और सैटेलाइट्स, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, देखो उसके ऊपर सोलर सेल का एक पैनल होता है, ठीक है, तो इसलिए बैटरी खत्म नहीं होता, ठीक है, मैं जो इंजीनियरिंग में यूज करता था उस पे लगा रहता है, ठीक है, तो ये लिख लो, पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स। नेक्स्ट देखो, और स्पेस स्टेशन में भी ये यूज करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में भी लिख लो, स्पेस स्टेशन, और कहां पे बताया, सिग्नल में भी यूज करते हैं, इन कम्युनिकेशन स्टेशन में भी, इन सिग्नल कम्युनिकेशन। चलो लिख लो फटाफट, यूजेस। Concentrate pressure created by the fixed amount of gas. नहीं